ایران کا انتقام، اسرائیل پر آتش آہن کی بارش، یعنی ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ السلام علیکم ناظرین، الحمدللہ ایران نے اسرائیل پر جوابی حملے کروائے اور یہ تقریباً 5 سپلوں میں کروائے گئے۔ پہلے سپل میں انہوں نے 100 بیلسٹک میزائل داغے، اس کے بعد 50 دوسرے اور 50 تیسرے میں ڈالے اور تقریباً 80 کے قریب تیسرے حملے میں کروائے۔ اور ابھی علی صبح جب اسرائیل میں صبح کی سورج طلوع ہو رہی تھی تو وہاں پہ ایرانی میزائلوں کی بارش بھی ہو رہی تھی۔ ایران کی حکومت نے سرخ جھنڈا لہرا کر اعلان جنگ کا اعلان کر دیا، کیونکہ اسرائیل پہلی مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سے امریکن کی پش پناہی پر اور ان کی انٹیلیجنس بیسس پر بار بار ایران کے آفیشلز، ہائی آفیشلز اور ساتھ ہی سائنٹسٹ اور یونیورسٹی پروفیسروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ آئیے سامعین میرے ساتھ نتنیاہو کی ویڈیو سن لیں کہ اس میں نتنیاہو کیا فرماتا ہے۔ First mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. سامعین، جب نتنیاہو سے پوچھا کہ آپ کے اہداف کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے 2 ہی دشمن ہیں، پہلا جو ہے وہ ایران ہے اور جو سیکنڈ ہے وہ پاکستان ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کی ذہن میں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ پاکستان کی ایٹمی قوت نے، یعنی ایٹم بم بنانے کے بعد پاکستان محفوظ ملک بنا ہے، ورنہ جس طرح آج ایران پہ حملے کر رہے ہیں اسی طرح سیم انہوں نے ایک دفعہ انڈیا میں آ کر وہاں پہ اپنے ایروپلین کو تیار کھڑا کیا تھا اور پاکستان پہ حملہ کرنے والا تھا، یعنی پاکستان کے ایٹمی پلانٹ پہ حملہ کرنے والا تھا تاکہ اس کی ایٹمی پلانٹ تباہ کرے۔ مگر اس وقت پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو خبر ہوئی اور انہوں نے انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ امریکہ کو خبردار کیا۔ سامعین، اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس کی پشت پہ امریکہ کھڑا ہے۔ امریکہ نے ایک سائڈ پہ ایران کو انگیج رکھا اور دوسری طرف ساری معلومات اسرائیل کو دے کر اس کو پیچھے سے ٹپکی دے دی کہ جاؤ حملہ کرو۔ It is not possible without America. Second thing is it's also not possible for Israeli planes to come directly Iran. اس کو راستے میں کہیں نہ کہیں پہ ریفیول کرنا پڑے گا۔ اب تک یہ کنفرم نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ ریفیولنگ کہاں کی، مگر انہوں نے جو راستہ اپنایا تھا تو یہ خلیج ممالک کے اوپر سے آتے ہوئے ایران تک پہنچے ہیں۔ ان کو آتے ہوئے بھی ریفیولنگ کی ضرورت پڑی ہے اور جاتے ہوئے بھی۔ تو اب یہی ہماری امت مسلمہ جو برائے نام مسلم ممالک ہے، یہ ان کی کمزوری ہے۔ اگر یہ ممالک ان کو اجازت نہیں دیتے تو it was not possible for Israel to come
अटैक ऑन ईरान, और वो भी 200 जहाज़ जब किसी मुल्क के ऊपर से, तो ये इन मुस्लिम ममालिक की बड़ी बेगैरती है। और वो इस पे अगर कहते हैं कि अगर हम इस पे खामोश रहे तो हम बच जाएंगे, मगर आप लोगों का बचना नहीं है। अमेरिका का प्लान है कि दे एस्टेब्लिश मॉनिटर ऑफ खलीज, वो इसराइल को खलीज का मॉनिटर बनाना चाहता है कि वहाँ इसराइल जो चाहेगा खलीज में वही चलेगा। सेम इसी तरह दे ट्राई द सेम फार्मूला ऑन इंडिया, और इंडिया भी बढ़ के मारता है और नरेंद्र मोदी भी बढ़ के मारता है कि बस मैं भी बहुत बड़ा चीज़ हूँ। तो उन्होंने भी ये कोशिश की और उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक कराया। अगर ये अटैक कामयाब होता तो अमेरिकन की जो प्लान थी खलीज और एशिया के बारे में, क्योंकि वो यहाँ पे चाइना के ख़िलाफ़ इंडिया को खड़ा करना चाहता है और यहाँ पे उनकी मॉनिटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि इंडिया इस इलाके का कंट्रोल हासिल करे और इसराइल खलीज ममालिक का हासिल करे। मगर याद रखिए, एक अमेरिका की प्लान होती है और एक अल्लाह ताला की प्लान होती है। मगर मुझे अफसोस इन मुसलमान ममालिक पे आ रहा है कि इसराइल इतनी दूर से आके 200 तैयारे इन ममालिक के ऊपर से जाते हैं, वो उन ममालिकों में रिफ्यूलिंग करता है, अटैक करने के बाद वापस जाता है और फिर रिफ्यूलिंग करता है। तो ये इनकी बहुत बेगैरती है। इस वक्त हम सब मुसलमान ममालिक को एक आवाज़ और एक कुव्वत बनना चाहिए, वरना सब ममालिक एक एक होके ख़त्म हो जाएंगे। खलीज ममालिक में आपने देखा कि मिस्र में जो एक बागी ग्रुप था, अमेरिका ने उन पे कितने करोड़ डॉलर इनाम इनके सर पे रखा था, मगर जो ही बशार अल असद की तख्ता को उल्टा दिया और वो रूस चला गया, तो अमेरिका आके उनके साथ बैठ गया, अब उनकी एड भी कर रहा है। तो हम सबको, यानी इतनी जितने भी मुसलमान ममालिक के अवाम है, उन सबको अमेरिकन की ई चाल का पता करना चाहिए। हमारे मुल्क में भी बदकिस्मती से कुछ लोगों के पीछे यही इसराइली और अमेरिकन लगे हुए हैं। बज़ाहिर जिस तरह बशार असद के ख़िलाफ़ जो बंदा लड़ रहा था, अमेरिकन मुर्दाबाद और अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे लगा रहा था, मगर जब बशार अल असद का तख्ता उल्टा दिया गया तो वही अमेरिका उनके साथ आके बैठ गया और अब उनकी इमदाद कर रहा है। सेम इसी तरह हमारे मुल्क में भी एक सियासी पार्टी के वर्कर एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई ग़ुलाम है के नारे लगाते हैं और पीछे से अमेरिका उनकी मदद कर रहा है, उनके लिए पैसे दे रहा है। उनका जो इस्लामाबाद में दफ्तर था उसका 10 साल किराया अमेरिकन एम्बेसी ने दिया। तो आया वो पाकिस्तान के लिए काम करेगा, या जो पैसे दे रहा है इसी तरह के एजेंट जो पैसे दे रहा है उनके लिए काम करता है। तो ईरानियों को बहुत बहुत मुबारक हो कि उन्होंने रिटेलिएट किया और सख्त जवाब दे दिया, मगर साथ ही OIC के दरे जो मुसलमान ममालिक की तंजीम है वो कब बैठे गए, वो कब जवाब देगा, वो कब खड़े होंगे। बहुत अफसोस की बात है कि OIC खामोश बैठी है, वो न कोई इजलास बुला रहा है, न इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है और न एक कुव्वत बन के जवाब देना चाहिए, वरना इसराइल कुछ भी नहीं है। मगर हमारे मुसलमान ममालिक की खामोशी और उनकी बैकडोर उनके साथ जो राबिते हैं उसकी वजह से इसराइल इस तरह सामने आके
गरजता और बरसता है। आपको एक मरतबा फिर याद दहानी करा दूं कि इसराइल पर ईरान ने 5 फिल्में बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कराए और उनके एयर ड्रोन ने कुछ मिसाइलों को हवा में ज़ाया कर दिया और अमेरिका उसका भरपूर साथ दे रहा है। अब यहाँ पे इंसानी हुकूक नहीं है, आप किसी मुल्क के अंदर जाके उस पर अटैक कर ले। अगर ये कोई मुसलमान मुल्क किसी यूरोप ममालिक में से या किसी एक जगह पे एक धमाका कर देता तो ये सब इकट्ठे हो जाते और उस मुल्क पे हमलावर हो जाते, जिस तरह इराक पे हुआ, जिस तरह अफगानिस्तान में हुआ है। मगर यहाँ पे इसराइल 200 जहाज़ों के साथ जाके ईरान पे हमला करता है और फिर डोनाल्ड ट्रंप वहाँ से उल्टा ईरान को थ्रेट कर रहा है, अगर आपने कुछ कर दिया तो इससे ज़्यादा आपके खिलाफ होगा। क्या ये दुनिया और दुनिया में जितने भी ममालिक है, ये अमेरिकन जो कहेगा वही उधर होगा? ये यूनाइटेड नेशन बनाने का क्या मकसद है? ये यूनाइटेड नेशन की जो इतनी आर्टिकल्स बनाए हैं, इन आर्टिकल्स और जो कवानीन बनाए हैं वो किस लिए बनाए हैं? अगर वो इसराइल और अमेरिका अपने पाँव के नीचे रोते हैं तो फिर ऐसे यूनाइटेड नेशन का क्या फ़ायदा? सब मुसलमान ममालिक को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा होना चाहिए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो आपको 40 साल पहले कहा था वही आपको दोबारा करना पड़ेगा। तब तक आप हिफाजत में रहेंगे, तब तक आपके ममालिक के अंदर कोई ऐसी बगावत नहीं आएगी, वरना ये अमेरिका और यूरोपियन कंट्री आपके अंदर इसी तरह बगावत पैदा करके आपकी हुकूमतों की तख्ता उल्टा देगी और फिर आप लोग और आपका कंट्री तबाह हो जाएगा। आपको मैं कर्नल कज़ाफ़ी का मिसाल देता हूँ, आप गूगल करके देख ले। वो जिसकी शादी होती उसको घर देता, उसको पैसे देता। आजकल देखो यही सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ और उनके बेटे के खिलाफ की अयाशियाँ कर रहा है, ये मुल्क के पैसे लूट रहा है। इसी तरह बगावत उभर के आज वो को पता चला होगा कि हमने अपने मुल्क के साथ क्या किया। उम्मीद है हमारे मुसलमान ममालिक के जितने भी लोग हैं, स्पेशली हमारे अपने पाकिस्तान के, ये बगावती जो हमारे आर्मी के ख़िलाफ़ बगावत करके दिन ब दिन सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, उनको कम से कम इन ममालिक की तारीख़ और वो पढ़ना चाहिए। फिर मैं उसको कहूँगा कि आप लोगों में शऊर है। ये जो इसके पीछे है ये इसराइल और अमेरिका है। बज़ाहिर वो एब्सोल्युटली नॉट का नारा आपके लिए लगाता है, मगर पीछे से ये लोग हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर रहे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक मस्वारम इजाज़त दनावारम दफ्ते पामा।